dear students. Welcome to Enlight English. My name is Anubhuti Shrivastava and today I have taken up the first lesson of your supplementary reader Snapshots, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saron. Children, William Saron was an American novelist, playwright, and he also awarded Pulitzer Prize. So, The Summer of the Beautiful White Horse is a very beautiful story of two Armenian boys, Aram and Murad. They were cousins and they belonged to a tribe that was famous for its honesty and integrity. Okay, before I'd like to start the lesson, I just tell you the main characters of the story. So, these are two boys, Aram and Murad, and this is the beautiful white horse. You know, Murad has stolen a beautiful white horse, and you'll come to know when I'll discuss the story. You'll come to know what is the story is all about. So this is the beautiful white horse. Okay. So come to the characters, children. This is the story of two Armenian boys, as I've said, Aram and Murad. Aram is also the narrator of the story. He is 9 years old, and the other boy is Murad. Murad is 14 years old. Murad is a crazy guy. He's free-spirited and he has a way with animals. He loves animals a lot and he has a way with them. That means he knows how to handle them. He knows how to handle them nicely. So they are cousins, and you'll see the friendship, you will see the love, you'll see the all the you can say the traits of their tribe in these two boys. So these two Armenian boys belong to a tribe, Garoglanian tribe. Please remember the name of the tribe, Garoglanian tribe, and this tribe is known for honesty and integrity. And this boy, Murad, has stolen a white horse. I have told you this is the white horse because he loved animals a lot and he wanted to ride the animal, to ride that horse. That is why he has stolen the horse only for riding. And now what happened, because their tribe is known for honesty and integrity, and if somebody will know that Murad has stolen the horse, the truth will come out, and the scars will come on their tribe. So how these things handled by both of them, that is the story is all about, and you'll come to know when we'll start it. So one more thing, I have already told you that Aram is also the narrator of the story. Okay, this is the Garoglanian tribe, and they, as I have told you, they are known for their honesty and integrity. Nobody of this tribe can steal or betray anybody or take advantage of anybody, because they can do anything but they cannot betray anybody, though they are poor, but they are honest. Garoglanian tribe, known for its honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. So मैं हिंदी में एक बार बता देती हूँ आपको कि एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है दो आर्मेनियन बॉयज़ की, जिनका एक का नाम है Aram एंड दूसरे का नाम है Murad. They are cousins and they love riding, they love animals. Even Murad is a crazy streak of their tribe, और उनको animals बहुत पसंद है. अगर वो बहुत poor हैं, they cannot afford to buy an animal. That is why Murad has stolen an animal only for riding. So how they justified it, like कि हमने चुराया है बट सिर्फ राइडिंग के लिए चुराया है, तो ये कोई चोरी नहीं है. एंड हाउ दे कवर्ड इट, अब कैसे ये इसको कवर करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ खुल गई तो इनका जो ट्रेट है उस पर स्कार्स आ जाएंगे, उस पर धब्बे आ जाएंगे, क्योंकि समथिंग लाइक 11 सेंचुरी 11 पुश्तों से इनकी ये जो एक आप कह सकते हो ना एक पूरी ट्रेड चली आ रही है कि ये लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, ये कभी कुछ चुरा नहीं सकते, ये कभी किसी को बिट्रे नहीं कर सकते, कभी किसी का एडवांटेज नहीं ले सकते. तो हाउ दीज टू, बिकॉज छोटे से बच्चे ही तो हैं दोनों, एक 9 साल का और एक 14 साल का, तो दे हैव देयर ड्रीम्स, दे वांटेड टू डू समथिंग एंड विच दे
आर नॉट एबल टू डू एग्जैक्टली बिकॉज दे आर रियली पुअर। तो कैसे इन्होंने अपने शौक पूरे किए और कैसे चीज़ों को छुपाया और कैसे इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया, ये है सारी स्टोरी। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन दिस स्टोरी इज अंकल खुशरो। अंकल खुशरो मुराद और आरम के अंकल हैं और ही इज़ द इरिटेटेड गाय, बहुत इरिटेटेड हैं, इम्पेशेंट हैं एंड वेरी कैजुअल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड ही इज़ ऑल्सो द क्रेजी स्ट्रीक, मतलब बहुत ही क्रेजी है और यही जो क्रेजी चीज़ है वो मुराद में भी आई है। वन मोर कैरेक्टर इज देयर, जॉन बायरो। जॉन बायरो जो है वो ओनर ऑफ द हॉर्स हैं, जो वाइट हॉर्स है, वाइट हॉर्स का नाम है वज़ीरे, जिसे मुराद जो है वो वज़ीरे कह के बुलाता है। सो जो वाइट हॉर्स के ओनर हैं जॉन बायरो, बिकॉज इनका हॉर्स चोरा है तो बहुत सैड और डेवस्टेटेड हो जाते हैं, और कैसे इनका वाइट हॉर्स उनको वापस मिलता है, मिलता भी है कि नहीं, ये आप स्टोरी में देखेंगे। नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द ऑल राइट। So I'm going to start the story and please listen to it very carefully. Do watch the full video, then only you'll understand it nicely. As I've already told that this story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Children, I'm not reading the paragraphs and all. I'm just marking it out and I'm translating it. You try to read it off. So first I'm translating this much. Okay. So एक बारी क्या होता है, what happened once कि एक बारी क्या होता है कि the narrator who is Aram, he was sleeping, वो सो रहा होता है और he was watching beautiful dreams and he's thinking about all beautiful ड्रीम्स एंड ऑल, ही इज़ इन सम ड्रीम्स एंड काइंड ऑफ थिंग, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है, बट उसे लग रहा था कि वो बहुत ब्यूटीफुल मिस्टीरियस डिलाइटफुल ड्रीम देख रहा है, मगर ये सपना नहीं होता है। जब वो उसे लगता है कि वो सपना देख रहा होता है, जब वो लेटा होता है तभी क्या होता है, सुबह के 4 बजे उसका जो कज़न होता है मुराद, जो कि बहुत क्रेज़ी, जो सब लोग कहते हैं कि बहुत पागल है, क्रेज़ी है, ये कुछ भी कर सकता है, वो आता है सुबह 4 बजे मेरे घर पे और मेरी विंडो पे टैप करता है। जैसे ही आरम जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, जब वो उठता है और वो अपने विंडो पे जाके देखता है तो मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो बहुत ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स पे बैठा रहता है। तो ये सब देख के आरम को बहुत ही अजीब लगता है, ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड उसको ऐसा लगता है कि ये मैं कोई सपना ही देख रहा हूँ, मैं बहुत डिलाइटफुल ब्यूटीफुल सपना देख रहा हूँ, क्योंकि हॉर्स राइडिंग तो आरम का भी ड्रीम था और मुराद को भी हॉर्सेस बहुत पसंद थे, मतलब उसे तो सारे एनिमल्स ही बहुत पसंद थे। सो उसे लगता है कि मैं सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुराद जो है वो अपने आप तो ये हॉर्स खरीद के ला नहीं सकता। सो मुझे उसे लगता है कि वो सपना ही देख रहा है। तो वो अपने बेड से उठ के जब विंडो की तरफ जाता है तो वो बिलीव नहीं कर पाता है कि उसने क्या देखा। अभी सुबह नहीं हुई थी, 4 ही बज रहे थे, बट आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया सो रही थी और अब उसे ये एहसास हो गया था कि वो जगा हुआ है, वो सपने नहीं देख रहा है और अंधेरा है, अभी सुबह हो चुकी है और वो सपना नहीं देख रहा है। मुराद वाकई में एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। एक बारी तो वो 2-3 बार अपनी आईज को रब करता है, उसके बाद वो यकीन करता है कि कुछ आर्मेनियन में कहता है कि हाँ ये तो एक हॉर्स है और तुम सपना नहीं देख रहे हो। मुराद कहता है आर्मेनियन में, तो आर्मेनियन भाषा में कहता है कि तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो आरम, ये सच है, मैं हॉर्स पर हूँ और अगर तुम्हें भी राइड करनी है तो क्विकली आ जाओ मेरे पास। अगर इफ़ यू वांट टू राइड मेक इट क्विक। यस, सो आरम बहुत अच्छे से जानता था, आरम knows that Murad enjoying being alive and more than anybody else who had never fallen into the word by mistake, but this was more than even I could believe. सब जानते थे कि मुराद इज़ अ क्रेजी गाय, ही कैन डू एनी थिंग एंड वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, वो लाइफ में रिस्क लेने में बहुत विश्वास रखता है
और ऐसा लगता है कि वो हमारी जो ट्राइब में, क्योंकि हमारी ट्राइब जो है वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए प्रचलित है, तो हमारी ट्राइब में वो मिस्टेक से आ गया है, क्योंकि जिस तरीके का वो है ऐसे लोग हमारे ट्राइब में नहीं होते हैं. गैरोग्लेनियन इज द ट्राइब, नेम ऑफ द ट्राइब, प्लीज रिमेंबर. तो एक बार ही आप कह सकते हैं कि वो फिर जो आरएम है वो सोचने लगता है कि मेरी भी जो मेमोरीज़ है ना हॉर्स के साथ, मेरी मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं और मेरी लॉन्गिंग्स है, मेरी क्रेविंग है कि एक बार मैं हॉर्स पर बैठूं. इसीलिए लगता है कि जो मुराद है वो आया है मुझसे पूछने के लिए कि क्योंकि वो जानता है कि मैं कितना मैं चाहता हूँ हॉर्स पे राइड करना. और ये एक ब्यूटीफुल पार्ट था, क्योंकि वो देख रहा था कि उसका सपना जो है वो पूरा होते हुए दिख रहा है, और जो मुराद है वो वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स पे बैठा हुआ है. तो दैट वाज द ब्यूटीफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. मगर जो दूसरा पार्ट था वो बहुत ही टेरेबल था, क्योंकि वो लोग बहुत पुअर थे. दे वर पुअर बिकॉज ऑफ देयर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, बिकॉज दे कैन नॉट स्टील, दे कैन नॉट बिट्रे, दे कैन नॉट डू एनी रॉन्ग थिंग्स, दे कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी. तो सेकेंड ये टेरिबल चीज़ थी कि वो बहुत पुअर थे एंड दे कैन नॉट अफोर्ड. इसीलिए वो बार बार जो आरएम है ना, जो नरेटर है ना, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वाकई में क्या मैं ये हॉर्स देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी ट्राइब में तो हम बहुत पुअर हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, हमारी पूरी जो ट्राइब है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, मतलब पॉवर्टी से घिरे हुए हैं हम. और हर एक ब्रांच गैरोग्लेनियन फैमिली की वो एक बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. मतलब इसका मतलब है कि हम लोग बहुत अमेजिंगली पुअर हैं. मतलब हम सुबह से शाम अपना पेट कैसे भरते हैं ये हम ही जानते हैं. वी आर लिविंग अ कॉमिकल पॉवर्टी लाइफ बिकॉज वी आर रियली रियली वेरी वेरी पुअर. और कोई ये समझ नहीं सकता कि हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं और अपने पेट को हम कैसे भरते हैं. मतलब हाउ कैन वी फुल आर बेलीज, कैसे हम अपने स्टमक को फुल रखते हैं और कैसे हम खाना खाते हैं. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. मतलब 11 पुश्तों से हम जो हैं वो फेमस हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए. हम बहुत पुअर हैं बट फिर भी हम कभी भी चोरी नहीं करते हैं. हम ऑनेस्टी के साथ ही जीवन जी रहे हैं. और मुराद कहता है कि पता नहीं हम किस तरीके से जीते हैं, ये हमें भी नहीं पता. वी आर अमेजिंगली और कॉमिकल लाइफ हम जी रहे हैं. वी आर वेरी वेरी पुअर. इसके अलावा इस वजह से, क्योंकि हम बहुत ऑनेस्ट हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो हमारे उसूलों के खिलाफ है, तो हम इसके लिए बहुत प्राउड है. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. मतलब हम बहुत सबसे पहले हम फील करते हैं कि वी आर वेरी प्राउड, समथिंग लाइक इवन 11 centuries वी आर प्राउड टू बी ऑनेस्ट. एंड उसके बाद हम इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, उसके बाद हम ये विश्वास करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है. अपने पेट को भरने के लिए भी हम कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि ये जस्टिफाइड है, क्योंकि कोई इंसान अपने जीवन के लिए हम कुछ कर सकते हैं. बट स्टिल वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर ऑनेस्ट, सो वी कैन नॉट डू एनी रॉन्ग थिंग. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील. मतलब हम किसी का एडवांटेज नहीं ले सकते और कभी भी कुछ चुरा तो बिल्कुल भी नहीं सकते. इसी वजह से जब मैंने हॉर्स देखा, इसी वजह से जब उसने हॉर्स देखा, कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है एज अ रिजल्ट. इसी का रिजल्ट था कि जब उसने हॉर्स देखा, भले ही वो बहुत मैग्निफिसेंट था, बहुत बड़ा था, मैं उसको स्मेल कर सकता था, कितना लवली है, कितना ब्यूटीफुल है, मैं उसको ब्रीथ करते हुए देख सकता था. मैं बहुत एक्साइटेड था, इट वॉज सो एक्साइटिंग. मगर फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था. मुझे विश्वास नहीं था कि अ हॉर्स, आई कैन राइड अ हॉर्स बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड अ हॉर्स. एंड मैं सामने अपनी आंखों के ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो इम्पॉसिबल है मेरे लिए. और क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारी ट्राइब आती है, तो और भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ये यकीन कर पाना कि मुराद एक घोड़ा लेके आया है राइड करने के लिए. बिकॉज मुझे पता है, क्योंकि आरम को ये पता था कि मुराद अगर घोड़ा लेके आया तो वो खरीद तो नहीं सकता, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स, क्योंकि हम अपना पेट ही नहीं भर पा रहे हैं. ठीक है, तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं. वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू बोथ एंड मीट. हम अपने दोनों, आप कह सकते हो कि सुबह और शाम के खाने के लिए हम नहीं अपनी
ये पूरा कर पा रहे हैं चीज़ें, तो हम कैसे एक हॉर्स खरीद सकते हैं। तो मुझे ये तो पता था कि मुराद ने हॉर्स खरीदा नहीं है, और अगर उसने खरीदा नहीं है तो फिर चुराया होगा, और मैं ये रिफ्यूज़ कर रहा था। मतलब मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मुराद कोई हॉर्स चुरा सकता है, क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, और मुझे पता है कि गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई इंसान थीफ नहीं है, तो इसका मतलब मुराद ये हॉर्स चुरा नहीं सकता। तो अगर मुराद ये हॉर्स चुरा नहीं सकता और उसने खरीदा भी नहीं है, तो हाउ कैन आई सी दिस? दैट इज़ वाई आरम वॉज नॉट एबल टू बिलीव दैट रियलिटी। पहले तो मैंने घूरा मुराद को, और उसके बाद मैंने हॉर्स को देखा, और एक पॉइज स्टिलनेस थी, मतलब एक चुपचाप, एक आप कह सकते हो एक रिलीजियस, मुझे एक बहुत ही शांति भरा महसूस हो रहा था, और इसके अलावा थोड़ा सा ह्यूमर भी था, और मैं बहुत डिलाइटेड भी था और मैं डरा हुआ भी था। मतलब आई हैड अ मिक्स्ड बैग ऑफ फीलिंग्स, बिकॉज आई एम फ्राइटेंड as well as I am delighted. I am excited, I was happy, I'm very excited to go there, I am excited to ride, but at the same time I was frightened and scared कि how come the horse came to my house, how come Murad has bought the horse or he stole it. That was not clear to me. So मैंने मुराद से पूछा, आरम ने मुराद से पूछा, क्या तुमने घोड़े को चुराया है? तो उसने बोला, तुम विंडो से बाहर आओ अगर तुम राइड करना चाहते हो। तो मतलब उसने मेरा ये क्वेश्चन था उसको कैजुअली इग्नोर कर दिया। उसने मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, और उसने बस इतना बोला कि तुमको अगर घोड़े पे राइड करना है तो प्लीज़ आ जाओ, वरना फिर जाओ। अब मुझे ये यकीन हो चुका था कि हाँ, वाकई में इसने ये हॉर्स चुराया है, उसने ये जो घोड़ा है वो चुराया है। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, मुझे बस, क्योंकि वो जानता है कि मुझे राइडिंग का बहुत शौक है, तो बस वो मुझे इनवाइट करने आया है कि मुझे राइड करना है कि नहीं, एज आई चूज। मतलब ये मेरे ऊपर है, मतलब मुराद इज नॉट फोर्सिंग मी एट ऑल। इफ आई वॉन्ट टू राइड आई कैन कम, तो ही इज सेइंग कि लीप आउट ऑफ द विंडो इफ यू वॉन्ट टू राइड, अदरवाइज आई विल गो। अब क्योंकि वो 9 साल का बच्चा, ही वॉन्टेड टू राइड अ हॉर्स, ही वॉज सो एक्साइटेड। तो वो जो आरम था बहुत एक्साइटेड था मुराद को देख के, वो किसी भी तरह राइडिंग करना चाहता था, मगर एट द सेम टाइम ही वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज स्केयर्ड कि इसने हॉर्स चुराया है, हमारे ट्राइब पे कुछ स्कार्स आ जाएंगे, दाग लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ना वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। देखिए वो कैसे जस्टिफाई कर रहा है, उसे लगता है, अब वो कहता है अपने आप से ही बात कर रहा है कि घोड़ा अगर हमने चुराया है खाली राइड करने के लिए, तो इसको चोरी नहीं कहेंगे। अगर हम उसको चुरा करके बेच देते और पैसे कमाते, तब ना ये चोरी होती। तो ही इज़ गिविंग जस्टिफिकेशन टू हिमसेल्फ ओनली, ताकि वो अपने आप को इस तरीके से ना, हम अपने आप को कंसोल करते हैं कि नहीं, हमने कुछ गलत काम नहीं किया है, मगर हमें पता है हमने गलत काम किया, बट वी आर कंसोलिंग आवरसेल्फ। तो वो कहता है कि ये स्टीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ हम घोड़ा लौटा देंगे राइड करने के बाद। और अगर आप किसी चीज़ के लिए क्रेज़ी हो, जैसे मेरा भाई मुराद है, तो ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग्स हैं, क्रेविंग है दोनों भाइयों को कि हम एक हॉर्स को राइड करें, तो इट इज़ नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और ये तब तक स्टीलिंग नहीं कहलाएगी जब तक हम उस घोड़े को बेच नहीं देंगे, और जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वी नो कि वी कैन रिटर्न दैट हॉर्स। तब अब आरम ने अपने आप को एनफ जस्टिफिकेशंस दे दिए, एनफ एग्जाम्पल्स दे दिए, काफ़ी सारी चीज़ें बता ली हैं, जिससे उसका जो सोल है पूरी तरह से कंसोल हो गया कि नहीं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वी हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग, वी विल रिटर्न इट बैक आफ्टर राइडिंग। तो वो जल्दी से कहता है मुराद से, ओके मैं कपड़े पहन के तब आता हूँ। तो मुराद कहता है हाँ मगर जल्दी से आना। तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है, नीचे उतरता है, यार्ड में जाता है और हॉर्स के ऊपर बैठता है अपने भाई मुराद के पीछे, एंड देन ही स्टार्टेड द राइड। अब हम कहाँ जाते हैं, हम एज ऑफ द टाउन पे जाते हैं, वॉलनट एवेन्यू। हमारे हाउस के पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल सा कंट्री यार्ड था। आई विल शो यू दैट। दिस इज़ द कंट्री साइड वाइन यार्ड्स ऑफ सन जोएक्लिन वैली, कैलिफोर्निया। मतलब वो रहते थे, वो बहुत ब्यूटीफुल सा कंट्री साइड था। तो वहाँ पे वो वॉलनट एवेन्यू पे गए। वो इस पूरी जगह पे सुबह के टाइम राइड करने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया, दे लव्ड इट।
और इस तरीके का कुछ व्यू था जहाँ वो राइड कर रहे हैं। सो अब वो यहाँ कहाँ कहाँ गए, वॉलनट एवेन्यू, बिहाइंड आवर हाउस देयर वाज अ कंट्री, वहाँ पे वाइन यार्ड्स थे, ऑर्किड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे, कंट्री रोड्स थी, और 3 मिनट के अंदर हम वहाँ ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। अब जो हमारा जो हॉर्स था इट बिगेन टू ट्रॉट। अब वहाँ पर जो हॉर्स था वो रुक गया और बहुत ब्यूटीफुल हवा चल रही थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। इट वॉज लवली टू ब्रीथ एंड feel of the horse running was wonderful. They both were feeling very happy and they were crazy. And जो मेरा कज़न था मुराद, जो कि हमारे स्ट्रीक का, हमारे आप कह सकते हैं हमारी ट्राइब का क्रेजीएस्ट मेंबर कहा जाता था, वो गाना गाना स्टार्ट कर लिया। मतलब ही बिगेन टू रोर। मतलब जब हमारा कोई ड्रीम फुलफिल होता है तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वी यूज टू सिंग, वी यूज टू रोर। तो वो ऐसे ही कुछ कर रहा था। अब वो यहाँ पर जो नरेटर है एरम है, वो बता रहा है कि कैसे हमारी ट्राइब कैसी है और कैसे हर एक ट्राइब होती है। तो वो बोल रहे थे कि हर एक फैमिली में क्रेजी स्ट्रीक होती है, और मेरी इस ट्राइब में हमारा जो कज़न मुराद है वो नेचुरल डिसेंडेंट है और हमारी क्रेजी स्ट्रीक का। मतलब हर एक पुश्त में एक क्रेजी मेंबर था हमारी ट्राइब में, और इस पुश्त में कौन है, मुराद है, जो कि मेरा भाई है, जो कि इम्पेशेंट है, इरिटेटेड है, यू कैन से ही इज़ वेरी, वो बहुत अलाइव रहना पसंद करता है, ही इज़ अ रिस्क टेकर, ही इज़ क्रेजी, ही कैन डू द इम्पॉसिबल। तो वो ये सारी चीज़ें बता रहा है। और इसके पहले जो थे हमारे, वो थे हमारे अंकल खुशरो। मतलब जो पहले की पुश्त में थे वो थे हमारे अंकल खुशरो, जो एक एनॉर्मस मैन थे, बड़े से व्यक्ति थे, और उनका बहुत पावरफुल उनका जो फिजिक था बहुत एम्फेटिक था, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। और वो, जैसे मैंने आपको वो जो पिक्चर दिखाई थी अभी सेंट जॉकेलिन वैली की, जो मैंने पिक्चर दिखाई थी, तो इस पूरी वैली में सबसे बड़ी मुस्टैशेस जो थी वो हमारे अंकल खुशरोव की थी। तो और वो भी बिल्कुल मुराद की तरह थे। और तो इसीलिए वो कहता है कि जो मुराद है ना, वो अंकल खुशरोव का नेचुरल डिसेंडेंट है, जबकि वो उनका बेटा नहीं है, मतलब उनका वो नेफ्यू है, बट स्टिल वो पूरा उनके पे गया है। ये बहुत फ्यूरियस इंसान थे। ही वाज सो फ्यूरियस, यू कैन से, in temper, so irritable, so impatient, he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. This is very important, children. This line is very important. You have to take care of this. पहले तो मैं ये बता दूँ उसने किस तरीके से आप कह सकते हो एरम ने डिस्क्राइब किया है अंकल खुशरो को, कि अंकल खुशरो वो मुराद, दे वर जस्ट लाइक द सेम, दे वर अलाइक, और एकदम सेम थे। जो अंकल खुशरो हैं, ही वॉज एन लार्ज एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड ही हैड द लार्जेस्ट मुस्टैच in that particular valley. He was so furious in temper, he was so irritable, so impatient, and he can stop anyone from talking by roaring. मतलब किसी पे भी चिल्ला देते थे, बिल्कुल धीरज नहीं था उनके अंदर, बहुत टेम्पर लूज करते थे जल्दी से, बहुत जल्दी चिल्ला पड़ते थे किसी को। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उसे बिल्कुल भी वो चीज़ एकदम से बंद कर देते थे। तो वो यही कह रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्कोर्स मार्कर है, जिसको आप कह सकते हो, जी हाँ, ये जो लाइन जो मैंने आपसे कहा है, दिस लाइन इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो बच्चों, जैसे सबका एक, यू कैन से ना, एक स्टिक टू लाइन होता है। कोई एक ऐसी चीज़ होती है जैसे जो आप हमेशा यूज़ करते हो, जैसे कुछ लोग स्टूपिड हमेशा यूज़ करते रहते हैं, या कोई भी आप कह सकते हो कोई एक ऐसी स्टिक टू लाइन है जो आप हमेशा यूज़ करते रहते हो। तो जो हमारे अंकल खुशरोव थी ना, उनकी जो स्टिक टू लाइन थी वो ये थी, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। सो दिस इज़ द डिस्कोर्स मार्कर, यू कैन से, स्टिक टू लाइन। ये उनका हर तकिया कलाम था, जिसको हम कहते हैं तकिया कलाम। हर थोड़ी देर के बाद वो ये लाइन जो है वो यूज़ करते थे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द डिस्कोर्स मार्कर ऑफ अंकल खुशरोव। तो अंकल खुशरोव हर चीज़ के बाद यही कहते थे, कोई परेशानी नहीं है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। Okay, so that was all.
नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, कोई किस तरीके की बात कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अंकल खुशरो को। अगर उन्हें नहीं पसंद तो वो उसको चुप करा देते थे। एक बार एक बहुत आप कह सकते हैं क्रेज़ी इंसिडेंट वो बता रहे हैं। क्रेज़ी इंसिडेंट क्या बता रहे हैं कि वो एक बार उनका खुद का बेटा आरिक जो उनका खुद का बेटा था, वो 8 ब्लॉक्स रन करके भागते हुए आया बार्बर शॉप पे, जहाँ पर उनके फादर जो हैं वो अपनी मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे। और उसके बेटे ने आके कहा कि पापा आर हाउस वॉज ऑन फायर, हमारा जो घर है वो जल रहा है। तो ये जो वैसे नॉर्मली कोई भी इंसान होगा वो जल्दी से भागेगा और अपने घर को देखेगा बिकॉज घर जल रहा है, मगर यहाँ पे अंकल खुशरो ने क्या कहा, चिल्ला करके बोला उन्होंने, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। सो बड़े कैजुअल थे, अगर ही डिडंट लाइक समथिंग तो ही विल नॉट गो। तो इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था कि घर में आग लगी है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। जबकि जो बार्बर था ही सेड कि भाई आपका बेटा कह रहा है कि आपका घर जल रहा है, आप जाइए जा कर के कुछ कीजिए। फिर अंकल खुशरो चिल्लाते हैं, एनफ, इट इज़ नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो इस तरीके का क्रेज़ी स्ट्रीक था वो। सो मेरा जो कज़न था मुराद, वो भी एकदम ऐसा ही था, नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैन अंकल खुशरो। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज ज़ुराब, तो यहाँ हमें पता चलता है मुराद के जो फादर का नाम है वो ज़ुराब है, और उनके जो फादर थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, वो बिल्कुल भी क्रेज़ी नहीं थे, वो हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करते थे। एंड इसी तरह हमारे ट्राइब में सब लोग थे। सो अ मैन could be the father of his own son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है आरम कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम जो हमारे हमारा खुद का फ्लैश हो, मतलब हमें मेरा खुद का बच्चा हो, ज़रूरी नहीं है उसकी पूरी जो हैबिट्स हैं वो हमारे ऊपर ही जाएंगी। भले उसका फ्लैश हमसे है, बट प्रोड्यूस हमसे हुआ है, बट स्टिल उसकी जो आप कह सकते हैं जो उसके रंग ढंग हैं, जो उसका नेचर है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी को ही पढ़े। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ट्राइब में ऐसा होता है कि जो इंसान जिसका बच्चा होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसके ट्रेड्स हैं या आप कह सकते हैं जो उसका नेचर भी है वो भी एकदम वैसा हो। जैसे मुराद के जो फादर थे ज़ुराब थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, मगर मुराद बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था, वो बिल्कुल अपने चाचा की तरह था। तो आप कह सकते हो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रेशियस एंड वैग्रेंट। तो वो बोलता है कि जो हमारी ट्राइब के ऐसी जो चीज़ें हैं, हमारी ट्राइब के जो लोग हैं, हमारी ट्राइब में ऐसा हो जाता है, और हमारी ट्राइब में वेरियस तरीके का अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं, और कुछ एक ऐसे क्रेज़ी लोग पाए जाते हैं जो कि बहुत ही कैप्रीशियस और वैग्रेंट होते हैं। कैप्रीशियस मतलब होता है विम्सिकल यू कैन से, और यू कैन से मनमौजी का इंसान जो अपने मन की करता है, और वैग्रेंट मतलब होता है वैगाबाउंड, और आप कह सकते हो वैंडरर, जो कि इधर उधर घूमने वाला, आवारा कह सकते हो, कहीं भी घूमे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई स्टॉप टिल देयर, यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, और आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। Wait for my next video. In the next video we'll complete the story. So thank you so much children. If you like that video, do like, share, subscribe. Thank you very much.